आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी रोशनी टीवी की खबरनामे में आपका खैर मकदम करता हूँ। खबर का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين۔ جب رمضان آیا کرتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ کیا مرکزی وزیر کشن ریڈی کو زراعت و کسان کے مسائل سے واقفیت نہیں؟ حیدرآباد تلنگانہ بھون سے پی یو سی کمیٹی چیئرمین وارمول ایم ایل اے جیون ریڈی کا صحافتی بیان۔ متحدہ ضلع میں نئے شراب کی دکانوں کے لیے قرار، مزید 3 دکانوں کے مالکین کے ناموں کا اعلان۔ کاماریڈی میں 1 دکان کا کاماریڈی کلکٹر جتیشوری پاٹل نے کیا اعلان۔ کسانوں کی سہولت کے لیے حکومت کے دھان خریدی مراکز کا قیام، ابھی تک 60 کروڑ کی رقم ادا کی گئی کسانوں کو۔ ضلع کلکٹر نارائن ریڈی انہوں نے ڈچپلی منڈل میں دھان خریدی مرکز کا کیا دورہ۔ شہر کے بڑا بازار میں موجود انوپما کمپیوٹرز پر شارٹ سرکٹ کے سبب لگی آگ، تمام الیکٹرانک اشیاء جل کر خاک ہو گئی۔ صدائے اردو سوسائٹی نظام آباد کمیٹی کی تشکیل، جدید بحیثیت صدر افضل تیجان کا انتخاب، نائب صدر کی حیثیت سے رضی الدین اسلم و ڈاکٹر رضی ستاری منتخب۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے رکن اسمبلی بودھن شکیل عامر نے آرڈیو دفتر پر پہنچتے ہوئے آرڈیو سے ملاقات کی اور مسائل کے حل کے لیے نمائندگی کی۔ رکن اسمبلی بودھن شکیل عامر، جو خود رکن اسمبلی ہونے کے باوجود عوامی مسائل کے حل کے لیے آرڈیو دفتر پر پہنچتے ہوئے تبادلہ خیال کیا اور مسائل کے حل کے لیے عوامی نمائندوں کے ہمراہ و قائدین و تنظیمی ذمہ داروں کے ہمراہ آرڈیو دفتر پہنچتے ہوئے کافی دیر تک مسئلے کے حل کے لیے تبادلہ خیال کیا اور جلد از جلد مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ عوامی مسائل کے حل کے لیے تحریری طور پر نمائندگی حوالے کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ سینئر ٹی آر ایس لیڈر عابد صوفی، احتشام و دیگر موجود تھے۔ کسانوں کی جانب سے کاشت کردہ پیداوار کی حکومت وقت با وقت کر رہی ہے ادائیگی، ابھی تک 60 کروڑ رقم کی گئی ادا، 2 سے 3 دن میں ادائیگی ہوگی مکمل۔ ضلع کلکٹر نارائن ریڈی انہوں نے ڈچپلی منڈل کا دورہ کرتے ہوئے کیا اظہار خیال۔ نظام آباد کلکٹر نارائن ریڈی نے دورہ کرتے ہوئے ڈچپلی پرائمری زرعی مرکز کے تحت قیام عمل میں لائے گئے دھان خریدی سینٹر کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ ضلع میں دھان کی خریدی میں اختتامی مرحلے پر آنے کی بات بتاتے ہوئے کہا کہ گزشتہ کل 5,75,000 میٹرک ٹن دھان کا ذخیرہ کیا گیا۔ اسی طرح سے 3 تا 4 یوم میں 98% خریدی کرنے کے متعلق منصوبہ بنایا گیا اور کسانوں کی جانب سے حاصل کردہ پیداوار پر 60 کروڑ روپے کی ادائیگی عمل میں لائی گئی ہے اور باقی رقم کو 2 تا 3 یوم میں کسانوں کو ادائیگی کرنے کا اظہار کیا۔ صدائے اردو سوسائٹی نظام آباد کا جائزہ اجلاس کا انعقاد و مستقبل میں تنظیمی کارکردگی میں تیزی لانے کے لیے دی گئی نئی کمیٹی کو تشکیل، بحیثیت صدر افضل تیجان منتخب، نائب صدر کی حیثیت سے پرنسپل رضی الدین اسلم و ڈاکٹر ذکی ستاری کا انتخاب۔ صدائے اردو سوسائٹی اس تنظیم کا مقصد ضلع میں اردو کی بقا و نوجوان شعراء کو موقع دینا و شہر میں مشاعرے کے شوق کو برقرار رکھتے ہوئے نوجوان و بزرگ نسل کو اردو کا ذوق فراہم کرنا ہے۔ اس تنظیم کے تحت سابق میں کئی مشاعروں کا کامیاب انعقاد عمل میں لایا گیا تھا، جس میں شہر و ضلع کے کئی نوجوان شعراء بھی ابھر کے آ گئے۔ گزشتہ 2 سال سے کورونا وبا کے سبب ان مشاعروں کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ گزشتہ شب
رضا گیسٹ ہاؤس میں اس تنظیم کا ایک اہم اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں شہر نظام آباد کے ایسے شخصیت نے شرکت کی جن کو اردو کا شوق و ذوق کے ساتھ اردو کا درد ہے، اور ان شخصیتوں پر مشتمل نئے پرانے صدر اراکین کے ساتھ اس کمیٹی کی تشکیل جدید عمل میں لائی گئی، جس میں تمام حاضرین مجلس کی رضامندی سے بحیثیت صدر شہر نظام آباد کے مشہور معروف تاجر افضل تیجان، نائب صدر کی حیثیت سے رضی الدین اسلم، ڈاکٹر رضی شتاری جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے افتخار نہال، جوائنٹ سیکرٹری کی حیثیت سے صدیق وفا اور شعیب دانش، اس طرح ٹریزری ذمہ دار محمد انور کو دی گئی۔ اس موقع پر کمیٹی کے ممبران ذکی شتاری، ڈاکٹر سمیع امان، عبود بن حمدان، ارشد مجید، مسعود و دیگر موجود تھے۔ الحمدللہ آج صدائے اردو سوسائٹی کا انتخاب عمل میں آیا، جس میں مجھے جو ہے صدر کی حیثیت سے منتخب کیا گیا، اور جنرل سیکرٹری ہمارے افتخار نہال صاحب، اور نائب صدر میں رضی شتاری اور رضی الدین اسلم، اور آرگنائزنگ سیکرٹری علی جناب مدین صاحب، اور اس طرح ابود صاحب، اور ٹریزرر انور صاحب کا انتخاب عمل میں آیا۔ الحمدللہ اس سوسائٹی کا اغراض و مقاصد یہ ہے کہ اردو کی بقا کے لیے انشاءاللہ ہم لوگ کام کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں جو ہے سو شعور بیداری کے لیے پروگرام کریں گے، جس میں بچے آج کل جو ہے سو بہت زیادہ موبائل سے منسلک ہو رہے ہیں، تو اس حساب سے ہم ایک پروگرام ایسا عمل میں لائیں گے کہ بچے کچھ دیر کے لیے، کچھ گھنٹے کے لیے موبائل سے دور ہو کر ہمارے پروگرام کے اندر وہ لوگ آئیں گے، اور اس میں ہم لوگ اس میں انعامات بھی رکھیں گے، تاکہ جو ہے بچوں کے اندر ایک شعور پیدا ہو، اور کچھ دیر تک موبائل سے ان کی دوری ہو۔ اور ایسے کئی مقاصد ہیں ہمارے، انشاءاللہ بچوں کی تعلیم رہنمائی بھی ہم لوگ کریں گے، اور جتنا اس اعتبار سے جو کام ہے انشاءاللہ ہم عمل میں لائیں گے انشاءاللہ۔ بچوں کو گود لینے کے لیے قانونی طریقہ اپنائے، زیڈ پی چیئرمین ڈی وٹھل راؤ کا اظہار خیال۔ ضلع پریشد کے احاطے میں منعقدہ بچوں کے تحفظ کے متعلق پروگرام میں زیڈ پی چیئرمین وٹھل راؤ نے بحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے قائم کردہ اصول و ضوابط کے تحت بچوں کو گود میں لینے کی بات بتاتے ہوئے کہا کہ بچوں کو گود لینے والے والدین آن لائن میں درخواست داخل کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے عائد کردہ اصولوں کے تحت بچوں کو گود لینے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں ضلع کے محکمہ بہبود کے عہدیدار جھانسی لکشمی، چائلڈ ویلفیئر کمیٹی چیئرپرسن سمونا و دیگر نے شرکت کی۔ చాలా విషయాలు ఇటు అధికారులు అయితేనేది, అటు పిల్లల తల్లిదండ్రులు అయితే వారి అనుభవాలు చాలా ఇవ్వడం జరిగింది। మరి నేను చూసినంతలో ఇప్పుడు సొంత పిల్లల కంటే ఎక్కువ మరి తల్లిదండ్రులు దత్తత తీసుకున్న తల్లిదండ్రులు ప్రేమతో చూడడము, మరి పిల్లలు కూడా తల్లిదండ్రులను సొంత తల్లిదండ్రులాగా చూడడం, అట్లాగే డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా సొంత కుటుంబ अकामती स्कूलों में कोरोना केसेस को रोकने के लिए महकमे सेहत की जानिब से एहतियात का मशवरा। वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि कोरोना के मसले पर हुकूमत मुकम्मल तौर पर चौकस है, लिहाजा तलबा और उनके सरपरस्तों को खौफजदा होने की कोई ज़रूरत नहीं। अकामती स्कूलों और हॉस्टल्स में कोरोना केसेस के मंजर-ए-आम पर आने से तलबा और सरपरस्तों में पाई जाने वाली बेचैनी पर वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि अकामती स्कूलों और हॉस्टल्स के तलबा को ज़्यादा चौकसी की ज़रूरत है। उन्होंने महकमे तालीम के आला अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए स्कूलों और हॉस्टल्स में कोरोना के केसेस का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों में इंतजामिया के साथ साथ तलबा को भी अपने तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। उन्होंने महकमे तालीम के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो स्कूलों में कोरोना क़वायद पर अमलावरी को यकीनी बनाएं। तलबा के लिए मास्क के इस्तेमाल और समाजी दूरी के अलावा वक्फे से हाथ धोने की पाबंदी की जानी चाहिए। सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि एहतियाती तदाबीर के जरिए हम कोरोना से बआसानी बच सकते हैं। डायरेक्टर अक़लियती बहबूद शाहनवाज कासिम IPS की जानिब से सिविल सर्विस के लिए अक़लियती तलबा की ऑनलाइन रहनुमाई।
तलबा से शिरकत की अपील। डायरेक्टर अखलाती बहबूद शाहनवाज कासिम IPS ने अखलाती तलबा से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों को सिविल सर्विस में इंतखाब के लिए रहनुमाई का फैसला किया है। ऐसे तलबा जो सिविल सर्विस इम्तिहानात में हिस्सा लेना चाहते हैं ताकि IAS, IPS, IFS या IRS सर्विस से वाबस्ता होकर मुल्क की खिदमत करें, उनके लिए शाहनवाज कासिम ने रहनुमाई और तरबियत की तहरीक शुरू की है। वो ऑनलाइन लेक्चरर्स के जरिए तलबा की रहनुमाई करते हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार फ़ोन नंबर 04023236112 पर रब्त कायम कर सकते हैं या फिर ईमेल पर रब्त कायम करें। डायरेक्टर अखलाती बहबूद की जिम्मेदारी निभाते हुए शाहनवाज कासिम ऑनलाइन क्लासेस के जरिए अखलाती तलबा की कई बरसों से रहनुमाई कर रहे हैं। उनकी निगरानी में माइनॉरिटीज स्टडीज सर्कल के जरिए 100 अखलाती तलबा को सिविल सर्विस कोचिंग का आगाज हो चुका है। अवामी शिकायत पर साबिका मेयर डी संजय का दौरा शिवाजी नगर, मुकामी अवाम को दरपेश मसाइल का लिया जायजा। शहर की साबिका फर्स्ट मेयर व सीनियर कायद कांग्रेस मिस्टर डी संजय को शहर के शिवाजी नगर इलाके के अवाम की जानिब से मिलने वाली शिकायतों के बाद इस इलाके के अवाम को दरपेश मसाइल से आगाही हासिल करने की गर्ज से आज मिस्टर डी संजय ने अपने करीबी रफ़्क़ा व दीगर नौजवानों के हमरा शिवाजी नगर इलाके का दौरा किया और मुकामी अवाम से इनके बल्दी व बुनियादी मसाइल से आगाही हासिल की। इस मौके पर इस इलाके के अवाम ने मिस्टर डी संजय को बताया कि इस इलाके में वाक़ शिवाजी चौक सर्कल के ज़ेरे तामीर कामों को मुताल्लिक़ा महकमे व कॉन्ट्रैक्टर की मुजरिमाना गफलत व लापरवाही के सबब अधूरा छोड़ा दिया गया काम है। मुकामी अवाम ने मुकामी कायदीन व महकमे अरबाब की लापरवाही पर अपनी शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह की लापरवाही से आए दिन इस सर्कल के करीब राहगीरों व मुकामी अवाम को ट्रैफिक के मसाइल व हादसात का सामना करना पड़ रहा है। दीगर मुकामी खवातीन ने डी संजय को बताया कि ज़ईफ़ अफराद व छोटे बच्चों और स्कूली तलबा व राहगीरों को रोज़ाना इस शिवाजी सर्कल की तामीर में ताख़िर के सबब कई तकालीफ व हादसात का ख़तरा बरकरार है। इस इलाके के अवाम को दरपेश मसाइल से आगाही हासिल करने के बाद मिस्टर डी संजय ने इस इलाके के अवाम को दरपेश मसाइल को मुताल्लिक़ा काम के इल्म में लाकर इन्हें बहुत जल्द हल करवाने का तयक़ुन देते हुए अवाम को मज़ीद डी संजय ने शिवाजी सर्कल के तामीराती पत्थरों को जो ट्रैफिक मसाइल का सबब बन रहे थे खुद अपनी निगरानी में अपने करीबी रफ़्क़ा व नौजवानों के जरिए एक जानिब हटाने का काम किया। राहगीरों व शिवाजी नगर इलाके के अवाम ने मिस्टर डी संजय की इस अवामी खिदमत पर भरपूर सताइश व सराहना कर रहे हैं। రోడ్డు మీదే ఐడర్లు ఇతర చెత్త మొత్తం పేరుకుపోయి ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలుగుతోంది. ఇటీవలి కాలంలోనే ఒక 2 యాక్సిడెంట్లు కూడా జరిగింది. సో స్థానికుల సహాయంతో ఈరోజు మేము వాలంటరీగా शिवाजी चौक में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर RT-PCR मुआयने के नाम पर मुसाफिरीन के साथ लूट खसोट, मरकजी हुकूमत की हिदायत की खुलेआम खिलाफ वर्जी। शहर हैदराबाद से बैरून मुल्क रवाना होने वाले मुसाफिरीन को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट RT-PCR मुआयने के नाम पर लूटा जा रहा है और किसी भी गोशे से इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कायम किए गए RT-PCR मुआयने के मरकज़ पर हैदराबाद से रवाना होने वाले मुसाफिरीन से मुआयने के नाम पर 4,500 रुपये वसूल किए जा रहे हैं, जबकि मरकजी हुकूमत की जानिब से RT-PCR मुआयनों के लिए जो कीमतें मुकर्रर की है इसके मुताबिक कम अज़ कम 500 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 800 रुपये वसूल करने की गुंजाइश नहीं दी गई है। लेकिन राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मैप माई जीनोम इंडिया लिमिटेड की जानिब से कायम किए गए कोरोना वायरस के मुआयने के मरकज़ पर मुसाफिरीन को लाजमी मुआयना करवाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि किसी भी मुल्क के लिए रवाना होने वाले मुसाफिरीन इस मुल्क के क़वानीन के मुताबिक अंदरून 48 घंटे या अंदरून 72 घंटे RT-PCR रिपोर्ट करवा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें एयरपोर्ट पर मौजूद RT-PCR मुआयने से गुजरना पड़ रहा है और इसके लिए 4,500 रुपये वसूल किए जा रहे हैं।
रहे हैं। दुनिया के बेशतर तमाम एयरपोर्ट पर पहुंचने बैरूनी मुसाफिरीन का मुआयना किया जा रहा है, जबकि शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैरून मुल्क रवाना होने वाले मुसाफिरीन के लिए लाजमी मुआयना किया जा रहा है और इसके लिए 4,500 रुपये वसूल किए जा रहे हैं, जिसके सबब मुसाफिरीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्या कोविड की नई किस्म की हैदराबाद में हुई आमद? मुतासिरा ममालिक से 2,168 मुसाफिरीन की हैदराबाद आमद, 11 मुसाफिरीन वायरस से मुतासिर। एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन हैदराबाद पहुंच चुकी है, क्योंकि 3 यौम ओमिक्रॉन से मुतासरा 12 ममालिक से जुमला 2,168 मुसाफिरीन शहर पहुंचे हैं। ओमिक्रॉन की सबसे पहले जिस जुनूबी अफ्रीकी मुल्क में शनाख्त हुई, वहां से 16 शहरी हैदराबाद पहुंचे हैं, जबकि जिन 12 ममालिक में अब तक इस नई किस्म की तौसीक हुई, वहां से 2,168 मुसाफिरीन हैदराबाद पहुंचे हैं, जिनके RT-PCR मुआयने से इंकशाफ हुआ कि इनमें 11 मुसाफिरीन कोरोना से मुतासिर है। ज़राए के मुताबिक एयरपोर्ट पर तमाम का मुआयना किया गया, जिनमें 11 मुसाफिरीन को वायरस की तौसीक के बाद इन्हें खरतीनिया के लिए रवाना कर दिया गया और इनके नमूने हासिल करके CCMB रवाना किया गया, ताकि पता चलाया जा सके कि वो कोरोना की किस किस्म से मुतासिर है। गुज़िश्ता 3 यौम में शहर पहुंचने वाले 2,168 मुसाफिरीन में 1,717 मुसाफिरीन का ताल्लुक UK से है, जिनको जनूबी अफ्रीका से 185 अफराद शामिल है। इसी तरह ब्राज़ील से 10 और बांग्लादेश से 8 अफराद शहर पहुंचे हैं। अलावाजी न्यूजीलैंड से 108, चीन से 9, मॉरिशस से 2, यूरोपीय ममालिक से 102, जिम्बाब्वे से 11 मुसाफिरीन शहर पहुंचे हैं। 16 मुसाफिरीन बोस्तावाना से हैदराबाद पहुंचे हैं। बोस्तावाना पहला मुल्क है जहां कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन की निशानदही हुई और फिलहाल बोस्तानवा में ही कोरोना की इस किस्म के ज़्यादा मुतासरीन हैं। मरकजी हुकूमत की हिदायत और बैरून मुल्क से पहुंचने वाले मुसाफिरीन की सख्त तनक़ी के अहकाम पर अमलावरी करके इन तमाम का RT-PCR मुआयना किया गया और इनमें 12 मुसाफिरीन को कोरोना की तौसीक हुई, लेकिन अब तक ये तौसीक नहीं की गई कि इन मुसाफिरीन में ओमिक्रॉन की किस्म पाई जा रही या कोई और किस्म। महकमे सेहत और शहरी हवाबाजी के अहदेदारों के मुताबिक जिन मुसाफिरीन को कोरोना की तौसीक हुई, इनके नमूने हासिल करके CCMB रवाना किया गया और जांच के बाद ही इसका पता चलेगा वो ओमिक्रॉन से मुतासिर है या नहीं। गुज़िश्ता साल ट्रैफिक चालानात से 208 करोड़ की आमदनी, जारिया साल 158 करोड़ से जायद की वसूली। साइबराबाद चालानात में सरे फहरिस्त, RTI सवाल से हुआ इंकशाफ। हुकूमत तेलंगाना को माली साल 2020-21 के दौरान ट्रैफिक चालानात से 208 करोड़ 47 लाख 3,700 रुपये वसूल हुए, जो कि अप्रैल 2020 था 31 मार्च 2021 के दौरान वसूल किए गए। रियासत तेलंगाना में अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2021 के दौरान 158 करोड़ 33 लाख 77,350 रुपये वसूल किए जा चुके। कानून हक मालूमात के तहत दाखिल की गई दरख्वास्त में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि साल गुज़िश्ता 208 करोड़ से ज़्यादा ट्रैफिक चालानात किए गए थे, जबकि जारिया साल 6 माह के दौरान 158 करोड़ से ज़्यादा वसूल किए जा चुके हैं। साल 2020-21 के दौरान ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वसूल किए गए चालानात में सबसे ज़्यादा चालान साइबराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में किए गए थे, जहां से 71 करोड़ 47 लाख 85,300 रुपये के चालानात किए गए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर हैदराबाद है, जहां 55 करोड़ 65 लाख 10,200 रुपये के चालान किए गए। तीसरे नंबर पर रच्चागुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद है, जहां 19 करोड़ 44 लाख 7,100 रुपये के चालानात किए गए हैं। रियासत तेलंगाना में साल 2020-21 के दौरान सबसे कम चालानात जिस इलाके में किए गए हैं वो है मलुगू, जहां महज 28,50,50 रुपये के चालानात किए गए हैं। माली साल 2020-22 के पहले 6 माह के दौरान जो चालानात किए गए हैं, इनमें भी साइबराबाद कमिश्नरेट हुदूद में सबसे ज़्यादा चालानात किए गए हैं, जहां इब्तदाई 6 माह के दौरान ही 53 करोड़ 26 लाख 16,800 रुपये के चालान किए जा चुके हैं और दूसरे नंबर पर कमिश्नरेट हैदराबाद के हुदूद है, जहां अप्रैल था सितंबर 2021 के दौरान
35 करोड़ 57,37,200 रुपए के चालानात किए जा चुके हैं। और तीसरे नंबर पर रच्चाकुंडा कमिश्नरेट है, जहां माली साल के पहले 6 माह के दौरान 13 करोड़ 99,22,400 रुपए के चालानात किए जा चुके हैं। रियासत तेलंगाना में महकमे पुलिस बिलखुसूस ट्रैफिक पुलिस की जानिब से किए जाने वाले चालानात और इनकी वसूली के इक़दाम से बरहम शहरियों की जानिब से अपनी बाइक को आग लगाने के वाक़यात मंजर-आम पर आ चुके हैं, क्योंकि शहरियों का इल्ज़ाम है कि ट्रैफिक पुलिस अमला शहरियों के लिए बेहतर ट्रैफिक निज़ाम को यकीनी बनाने और इन्हें ट्रैफिक जाम से पाक रास्तों की फराहमी के बजाय तस्वीर कशी करते हुए इन्हें चालान करने में मसरूफ़ है। और इसी का नतीजा है कि रियासती हुकूमत को ट्रैफिक चालानात से सैकड़ों करोड़ रुपये वसूल होने लगे हैं। बालकुंडा हल्के असम्बली एरगडला मंडल के मुकाम पर भारतीय जनता दल पार्टी की ज़ेर निगरानी में पेट्रोल व डीजल पर रियासती हुकूमत की जानिब से आयद करदा वैट को कम करने के मुतालबे के साथ किया एहतजाज दर्ज। जिले निजामाबाद बालकुंडा हल्का असम्बली भारतीय जनता पार्टी एरगडला मंडल सदर एलैया नारायणा रेड्डी की ज़ेर निगरानी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर मबनी वैट को फौरी तौर पर कम करने के मकसद के तहत रियासती हुकूमत के क़ायद ने एहतजाजी धरना मुनक़िद किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि पेट्रोल व डीजल पर मौजूद वैट को कम करते हुए अवाम पर आयद करदा बोझ को कम करने के बाइस बताते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये कम करते हुए अवाम पर मौजूदा बोझ को कम किया गया है। और इसी तरह से कई रियासतों की जानिब से वैट में कमी लाने का इजहार किया और कहा कि रियासती हुकूमत फिलफूर दिलचस्पी लेते हुए वैट में कमी न लाने की सूरत में भारतीय जनता पार्टी के ज़ेर निगरानी बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना करने का इंतबाह दिया। इस प्रोग्राम में मंडल नारायणा रेड्डी, गुमिरियाल चंद्रा, एमपीटीसी शंकर, सरपंच सोमा, राजा रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में मुनक़िदा इजलास से नए एक्साइज पॉलिसियों के तहत तातुल का शिकार 3 वाइन शॉप का खुरा अंदाजी करते हुए मालिकीन का किया ऐलान। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में मुनक़िदा इजलास में नए एक्साइज पॉलिसी के तहत तातुल का शिकार 3 वाइन शॉप को क़रारदाजी के जरिए कामयाब करार दिया गया। और इसी तरह से इस माह की 20 तारीख को मुनक़िदा लकी ड्रॉ के जरिए जिले में 102 वाइन शॉप का इंतखाब अमल में लाना था, लेकिन 99 वाइन शॉप का इंतखाब अमल में लाया गया था और बाद दरख्वास्तों की जानिब से शख्सी दिलचस्पी न होने के बाइस रोके गए। 8, 36, 99 नंबर वाले शॉप से मुल्हका अफराद से फिर दोबारा दरख्वास्तें हासिल करते हुए इन्हें कामयाब करार दिया गया। इस प्रोग्राम में जिले के प्रोहिबिशन एक्साइज अहदेदार और डॉक्टर नवीन चंद्रा व दीगर ने शिरकत की। లాటరీ తీయడం జరిగింది. ఇందులో టాప్ నంబర్ 36కి 26 అప్లికేషన్స్ రావడం జరిగింది. 15th నంబర్ అప్లికెంట్ లక్కీ డ్రాలో సెలెక్ట్ అయ్యాడు. తర్వాత షాప్ నంబర్ 99లో 22 అప్లికేషన్స్ రావడం జరిగింది. ఇందులో 3rd నంబర్ అప్లికెంట్ లాటరీ రావడం జరిగింది. తర్వాత షాప్ నంబర్ 08లో మొత్తం 51 అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి. దీనిలో 16 నంబర్ అప్లికెంట్ సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు వీళ్ళు ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఆఫ్ లైసెన్స్ ఫీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఈరోజే ప్రొవిజనల్ లైసెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. आंगनवाड़ी मराकज़ पर टीचर्स वक्त की पाबंदी करते हुए बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे, बोधन CDPO विनोदा ने दौरा करते हुए दी हिदायत। बोधन CDPO विनोदा ने जानकमपेट देहात में मंडल की सीक्रेट मीटिंग मुनक़िद करते हुए कहा कि आंगनवाड़ी मरकज़ में मौजूदा कम वजन बच्चों पर टीचर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देते हुए इनके वालिदैन को काउंसलिंग देने की बात बताई और बच्चों की हाज़िरी में कमी न होने के मुतालिक टीचर्स ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो लेते हुए बच्चों को मुतवाज़न ग़िज़ा की फ़राहमी अमल में लाते हुए हर माह बच्चों के वालिदैन मुक़ामी अवाम के साथ इजलास मुनक़िद करने के साथ साथ आंगनवाड़ी मरकज़ में बच्चों की हाज़िरी व वज़न से मुतालिक एक रजिस्टर में दर्ज करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रेंजल मंडल के स्वरूपा, मंडल आंगनवाड़ी टीचर्स व दीगर ने शिरकत की।
విలేజ్లో అంగన్వాడీ సెంటర్లో ఎడపల్లి మండల్కి సంబంధించి సెక్టార్ మీటింగ్ నిర్వహించడం జరిగింది. సెక్టార్ మీటింగ్లో ఎవరైతే వయసుకు తగ్గ బరువు లేరు, ఎవరైతే ఎత్తుకు తగ్గ బరువు లేని వారు SUW చిల్డ్రన్స్ మరియు శామ్యామ్ చిల్డ్రన్స్ని 3 monthsలో వాళ్ళను సూపర్వైజరీ ఫీడింగ్ ఇస్తూ హౌస్ విజిట్స్ చేస్తూ నార్మల్కి తీసుకురావాలని, ప్రతి ఒక్కరిని కూడా నార్మల్కు వచ్చేటట్టు చూడాలని టీచర్స్కి ఆదేశించడం జరిగింది. कामारेड्डी जिला कलेक्टर जितेश्वी पाटिल ने वाइन शॉप्स के लिए लकी ड्रॉ के जरिए मालिकीन का किया ऐलान। कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने जिले दफ्तर में मुनक्किदा लकी ड्रॉ में वाइन शॉप के क़याम के लिए 33 दरख्वास्तों से मुलहक़ अफराद के सामने खरानंदाजी अमल में लाने पर पिद्दा कोडबगल से वाबस्ता वाइन शॉप से मुलहक़ा दुर्गा प्रसाद को कामयाब करार दिया गया। इस प्रोग्राम में जिले के प्रोहिबिशन एक्साइज अहदेदार श्रीनिवास, एक्साइज इंस्पेक्टर संतोष रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। RTC व रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से कायम करदा ब्लड डोनेशन कैंप का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया इफ्तिदा वो इनकी खिदमत की सताइश। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने RTC MD सजनार के अहकामात के मुताबिक शहर के RTC बस स्टैंड कॉन्फ्रेंस हॉल में क़याम अमल में लाए गए खून का अतिया कैंप का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि कोविड-19 का कहर बर्पा होने की बिना पर खून के अतिया कैंप में कमी आने की बात बताई, लेकिन इस दौरान नौजवानों की जानिब से खून का अतिया देने की पहल को खुश आइन बात करार देते हुए कहा कि शहर के RTC मुलाजमीन की जानिब से 3 सेंटर्स का क़याम अमल में लाते हुए 150 यूनिट देने का मंसूबा बनाने पर खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रेडको चेयरमैन डॉक्टर रामचंदर, सेक्रेटरी अंजनिलू, असिस्टेंट CE मेंबर टोटा राजशेखर व दीगर ने शिरकत की। ఈ మధ్య కాలంలో మ్యాసివ్గా మనం క్యాంప్స్ పెట్టలేదు. అలాంటి సందర్భంలో మరి అట్లీస్ట్ ఒక 1 month వరకు, మళ్ళీ 15 days 1 month వరకు మీ ఈ క్యాంప్స్ ద్వారా వచ్చిన బ్లడ్ మనం ఉపయోగించుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క RTC ఎంప్లాయీస్కు మనస్ఫూర్తిగా శుభాభినందనలు. అంత మంచి కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్న ఖజానా సార్కి अवाम दुश्मन हुकूमत मोदी सरकार, जवाल तक मुल्क का भला नहीं होगा KCR। पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट के बाहर लड़ाई जारी रहेगी, इस कदर घटिया हुकूमत मैंने नहीं देखा, KCR ने किया इजहार ख्याल। आइंदा सीजन में भी धान की खरीदी नहीं होगी, मरकज ने दिया जवाब। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने नरेंद्र मोदी हुकूमत को अवाम और किसान दुश्मन करार दिया और कहा कि मोदी हुकूमत के जवाल तक अवाम का भला नहीं होगा। हम हर कदम पर मरकज से लड़ते रहेंगे, किसानों और अवाम के हक में जद्दोजहद जारी रहेगी। काबीना इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए KCR ने मरकजी हुकूमत और बतौर खास मरकजी वज़रा पीयूष गोयल व किशन रेड्डी पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि ये दोनों वज़रा शर्म व हया के बगैर किसानों और तेलंगाना के मफादात के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी में आज तक ऐसी घटिया और नीच हुकूमत नहीं देखी जो इस वक्त मरकज़ में बरसर इख्तिदार है। हुकूमत अपनी समाजी जिम्मेदारियों को फरामोश कर चुकी है। मुल्क में आम आदमी, मुतवस्सित तबक़ात और किसानों की दुश्मन हुकूमत ने हर सतह पर ऐसे फैसले किए जो तबाही का सबब बन रहे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पार्लियामेंट और उसके बाहर TRS के अरकान रोजाना हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी रखेंगे। KCR ने कहा कि 750 किसानों की खातिर मरकजी हुकूमत को एक दिन तेलंगाना के किसानों से माजरत करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मरकज के बरक़ी बिल की मुखालिफत की जाएगी। इसके अलावा SC तबक़ात की ज़िम्मेबंदी और गिरिजन तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के लिए मरकज पर दबाव बनाया जाएगा। पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में इजाफे का हवाला देते हुए KCR ने कहा कि तेलंगाना में किसानों से धान की खरीदी के मसले पर मरकज का रवैया गैर इंसानी है। मरकजी हुकूमत बायलेट राइस, मोटापा चावल खरीदने से इनकार कर रही और आइंदा सीजन के लिए धान का कोटा मुकर्रर करने तैयार नहीं है। इन हालात में तेलंगाना हुकूमत ने आइंदा सीजन में किसानों से धान की खरीदी न करने का फैसला किया। शहर निजामाबाद के बड़े बाजार में वाक़ अनुपमा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में शॉर्ट सर्किट का पेश आया वाक़या। तमाम मशीनें व आलात व फर्नीचर जलकर हुए खाक। जिले निजामाबाद के बड़ा बाजार में वाक़ अनुपमा कंप्यूटर एंड टाइप इंस्टीट्यूट में
शॉर्ट सर्किट किए 22 कंप्यूटर्स, टैब मशीन, जेरोक्स मशीन व फर्नीचर्स जलकर खाके तर होने पर तकरीबन कई लाख रुपये का नुकसान होने की इत्तला हासिल हुई है। एक जानिब मरकजी हुकूमत की जानिब से किसान मुखालिफ पॉलिसी तो दूसरी जानिब मरकजी वजीर किशन रेड्डी की जानिब से जय जवान जय किसान के नारे पर आर्मूर एमएलए व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने किया बरहमी का इजहार। आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने हैदराबाद के टीआरएस एलपी दफ्तर में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि मरकजी वजीर किशन रेड्डी इंतखाबात के ऐन मौके पर जय जवान जय किसान के नारे लगाकर किसानों व अवाम को अपनी बातों में उलझाते, जैसे इंतखाबात मुकम्मल हो गए सब कुछ भूल जाने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि निजामाबाद रुकन पार्लियामेंट डीआर विन इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को फरामोश करते हुए अवाम को अपने बातों में मसरूफ रखते हुए तरक्याती कामों को नजरअंदाज करने का इजहार किया। 36 జాతీయ పార్టీలు నొప్పించి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఒక శక్తి మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ పాలిట దేవుడు కాంగ్రెస్ మెడల్ వంచి బీజేపీని పార్లమెంట్లో మాట్లాడే విధంగా ఏ విధంగా చేసిండో వారిని అడిగితే ఈయనకు స్పష్టమైన అవగాహన వస్తుంది। కిషన్ రెడ్డి గారికి అవగాహన లేదు, ఆయనకి ఎడ్లు లేవు, వ్యవసాయం లేదు, పేరులో కిషన్ గాడు, ఆయన రైతు గానే కాదు। అట్లాంటి వ్యక్తికి అంబర్పేటలో ఓడించిర్రు, సికింద్రాబాద్లో గెలిపించిర్రు, ఉండేది పట్టణంలో। పాపం రైతుల గురించి ఆయనకు అవగాహన లేదు। వడ్ల గురించి మాట్లాడినవా, అసలు నీకు వడ్ల అంటే అవగాహన ఉందా అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ఆయన అడుగుతా ఉన్నా। అటు ఉద్యమం కావచ్చు, ఇటు వడ్ల గురించి కావచ్చు। మరి 40 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులే కొంటామన్నావు, మరి 62 లక్షల ఎకరాల్లో జిల్లా కలెక్టర్లందరూ 1,02,00,000 మెట్రిక్ టన్నులు ఉత్పత్తి అవుతా ఉందని చెప్పారు। దాన్ని కేంద్రమే 58 లక్షల ఎకరాల్లో 58,20,000 ఎకరాల్లో పంట వండిందన్నారు। మరి ఒక ఎకరానికి 25 క్వింటాల్లో వస్తే 58 లక్షల ఎకరాల్లో ఎంత వస్తుందో ఆయనకు లెక్కలు రావు। ఉత్తరప్రదేశ్లో 10,000 కోట్ల సబ్సిడీ ఇచ్చారు, ఆడ ఎన్నికలు ఉన్నాయి। మరి ఒక 10,000 కోట్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం తీసుకురా, నువ్వు కేంద్ర మంత్రి కాబట్టి ఒక 10,000 కోట్ల రూపాయల అక్కడి నుంచి తీసుకురా। నేను आयुष्मान भारत स्कीम गरीबों के इलाज में खानगी दवाखाने सरे फहरिस्त। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत गरीब अवाम के इलाज में खानगी हॉस्पिटल सर्द मोहरी का रवैया इख्तियार किए हुए। हालांकि इस स्कीम के तहत इलाज की हद को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया गया। बावजूद रियासत के खानगी हॉस्पिटल में इस स्कीम की अमलावरी नहीं हो पा रही है, ना इसका कोई जवाब खानगी हॉस्पिटल पेश करते हैं और ना ही रियासती हुकूमत इन पर अमलावरी को यकीनी बनाने के कोई इक़दाम करती है। गुज़िश्ता रोज एक बयान में आरोग्य श्री ट्रस्ट के सीईओ सैयद अली मुर्तजा रज़वी ने अपने एक बयान में बताया था कि आयुष्मान भारत स्कीम के लिए कोई अलहदा शनाख्ती कार्ड की जरूरत नहीं है। रियासत में आयुष्मान भारत स्कीम पर अमलावरी का आगाज जारिया साल में से हुआ, ताहम इस स्कीम के दायरे में 26.11 लाख खानदान ही आते हैं, लेकिन रियासत में इस स्कीम पर अमलावरी के साथ 88.5 लाख खानदानों के लिए इलाज के अखराजात की हद को 2 लाख से 5 लाख रुपए तक कर दिया गया। रियासत में 264 नेटवर्क हॉस्पिटल आयुष्मान भारत के तहत हुदूद में आते हैं और इन हॉस्पिटल्स में शोरबेदारी और तरबियत को भी अहदेदारों ने अंजाम दिया। बावजूद इसके कि अक्सर इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं कि खानगी व कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स तवज्जो नहीं देते और ना ही आयुष्मान भारत के तहत इलाज के लिए राजी है। रियासती हुकूमत आयुष्मान भारत की कामयाबी अमलावरी के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है, ताहम असल खानगी हॉस्पिटल्स को काबू में करने में हुकूमत मुसलसल नाकाम दिखाई देती है। हालांकि हॉस्पिटल्स की एम्पाइनल होने के बावजूद इन्हें रहनुमाना खतूत आखिर क्यों जारी नहीं किए गए। हुकूमत को चाहिए कि वो इस स्कीम की अमलावरी को हर जवाये से सहूलत बख्श बनाने के इक़दाम करें। महकमे वक्फ बोर्ड में मंजूरा मुलाजिमीन की तादाद में ताहाल अदम खतियत। वक्फ बोर्ड, हज कमेटी, उर्दू एकेडमी में अमले की खिल्लत तो वक्फ बोर्ड के अमले की मनमानी, हुकूमत की जानिब से अखिलियत नज़रअंदाज।
रियासत तेलंगाना में हुकूमत को महकमे अखलाती बहबूद से किस हद तक दिलचस्पी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महकमे अखलाती बहबूद के तहत खिदमत अंजाम देने वाले इदारों में मंजूरा मुलाजमीन की तादाद को अभी तक खतियात नहीं दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद इन इदारों में मनमानी तकर्रुरात और अहदेदारों के अलावा मुलाजमीन के रिश्तेदारों का तकर्रुर किया जा रहा है। और अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि इन इदारों में नामजद ओहदों पर आने वालों की जानिब से अपने रिश्तेदारों के तकर्रुर को यकीनी बनाया जा रहा है और अरकान असम्बली व कानून साज कौंसिल भी इस दौड़ में पीछे नहीं, बल्कि इनकी जानिब से भी इन तकर्रुरात के सिलसिले में अपने असर सोख का इस्तेमाल किया जाने लगा है। तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड, तेलंगाना रियासती हज कमेटी, तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी के अलावा तेलंगाना रियासती अखलाती मालियाती कॉर्पोरेशन में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन और ओहदेदार या इन इदारों में साबिक में खिदमत अंजाम दे चुके ओहदेदारों या नामजद ओहदों पर खिदमत अंजाम देने वालों और मुलाजमीन के रिश्तेदारियों की तहकीकात पर इंकशाफ हुआ है कि इन इदारों में खिदमत अंजाम देने वाले बेशतर मुलाजमीन साबिक ओहदेदारों के रिश्तेदार है या फिर नामजद ओहदों पर खिदमत अंजाम देने वालों ने अपने रिश्तेदारों को इन इदाराजात में मुलाजिमत की फराहमी में अपना किरदार अदा किया है। तेलंगाना रियासती हज कमेटी में मुलाजिमत की फराहमी के सिलसिले में कुल रहनुमाना खतूत पर अमल किया गया, इसके मुतालिक कोई कुछ नहीं बता सकता। इसी तरह तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी की भी हालत है, जहां स्कीमात से ज्यादा तनख्वाहों पर खर्च करने जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं और अब मुलाजमीन की तादाद 45 तक पहुंच चुकी है। तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड के अलावा तेलंगाना रियासती अखलाती मालियाती कॉर्पोरेशन में भी अमले के तकर्रुर के लिए सिर्फ सिफारिशात को नजर में रखा गया है, जिसकी वजह से महकमे अखलाती बहबूद के तहत खिदमत अंजाम देने वाले इन इदारों में कोई काम सलीके से नहीं किया जाता। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। क्या मरकजी वजीर किशन रेड्डी को ज़राअत व किसान के मसाइल से वाकिफियत नहीं? हैदराबाद तेलंगाना भवन से पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी का सहाफती बयान। मुतहदा जिले में नए शराब की दुकानों के लिए खराब मस्जिद 3 दुकानों के मालिकान के नामों का ऐलान। कामारेड्डी में एक दुकान का कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वी पाटिल ने किया ऐलान। किसानों की सहूलत के लिए हुकूमत के धान खरीदी मराकज का क़याम। अभी तक 60 करोड़ की रकम अदा की गई किसानों को। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी, इन्होंने डिचपल्ली मंडल में धान खरीदी मरकज का किया दौरा। शहर के बड़ा बाजार में मौजूद अनुपमा कंप्यूटर्स पर शॉर्ट सर्किट के सबब लगी आग, तमाम इलेक्ट्रॉनिक अशिया जलकर खाक हो गई। सदाए उर्दू सोसाइटी निजामाबाद कमेटी की तश्कील जदीद बाहैसियत सदर अफजल तेजान का इंतखाब। नायब सदर की हैसियत से रजीउद्दीन असलम व डॉक्टर रजी सत्तारी मुंतखब। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। मैं ज़ीशान रज़वी, अल्लाह हाफिज़।